اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی اچھا جی الحمدللہ۔ چلیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ٹھیک ہے، اور ڈیٹیل زیادہ نہیں کریں گے، جلدی جلدی ایک دو آیات کر لیتے ہیں، اور یہاں سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آگے وَإِذْ وَإِذْ تقدم إعرابها. يرفع يرفع فعل مضارع مرفوع بالضمة. إبراهيم فاعل مرفوع بالضمة. القاعد مفعول به منصوب بالفتحة. من البيت جار مجرور في موضع النصب حال من المفعول به. حال بن رہا ہے، جار مجرور جو ہے فی محلی نصب حال بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی نا، نئی بات آ گئی۔ باقی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اور اس کے بیچ میں اسکرو ہے، اور اسکرو میں فائل ہے، اور یہ اس کا مضاف اور مضاف الیہ بن کے کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ بن کے تو اس کا مفعول بن جائے گا، ہے نا؟ کس کا؟ اسکرو کا۔ صحیح ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ جی جی اچھا، من البیتی جو ہے نا، القواعد من البیتی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جار مجرور کے بعد اگر صفت آئے، جار مجرور کے بعد نکرہ کے بعد جار مجرور آئے، سوری، نکرہ کے بعد جار مجرور آئے، تو وہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ نکرہ کی صفت بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آئے تو اس کی صفت بنتا ہے۔ یہاں پہ معرفہ کے بعد جار مجرور آیا تو اب تو صفت نہیں بنے گا نا، ہے نا؟ نہیں حال بنا۔ حال بنے گا۔ Who is this? السلام علیکم، ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ مغرب کے بعد، اوکے، مغرب کے بعد میں نے سائمہ کی لینی ہے اسسمنٹ، سائمہ کے بعد آپ کی لوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، ابھی میں کلاس لے رہی ہوں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد آتا جار مجرور تو وہ صفت بنتا، معرفہ کے بعد آیا تو حال بن رہا، الٹ ہو گیا۔ آگے وہ اسماعیلہ کیا ہو؟ وإسماعيل معطوف على إبراهيم مرفوع بالضمة. تو یہ کیا ہے؟ وہ اسماعیلو ہوگا نا، جی اسماعیلو۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیلو، تو یرفع کا فائل کیا بنے گا؟ ابراہیم اور اسماعیل دونوں بنیں گے۔ جی دونوں جو تھے وہ ریس کر رہے تھے نا دیواروں کو خانہ کعبہ کی، ہے نا؟ جی اور بیچ میں یہ کیا بن گیا؟ القواعد مفعول بن گیا، اور یہ جو ہے من البیتی جو ہے یہ حال بن گیا، اس کو حال کہیں گے، محلن منصوب کیونکہ جار مجرور ہے نا۔ اور کس کا حال بن رہا ہے؟ کس کا حال بن رہا ہے؟ مفعول کا حال بن رہا ہے۔ جی اگر فائل کا حال بنتا تو مرفوع ہوتا، مفعول کا بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے۔ فائل جو ہوتا ہے نا وہ حال، جو حال ہوتا ہے نا وہ فائل کا بھی ہو سکتا ہے، مفعول کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی حالت بتائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو حالت بتائی جا رہی ہے وہ مفعول کی بتائی جا رہی ہے، قواعدہ کی بتائی جا رہی ہے من البیتی، اور اسماعیلو جو ہے وہ بھی فائل بن رہے ہیں۔ ربنا، ابھی وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ پڑھیں۔ ربنا التقدير يقولان ربنا. یقولانی ربنا،
यहाँ पे यकूलानी माजूफ है। वो जी दोनों क्या कह रहे थे दुआ मांगते हुए, वो क्या कह रहे थे, दोनों क्या कह रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। तो यहाँ पे यकूलानी क्यों आया है? क्योंकि वो दो हैं, दोनों दुआ मांग रहे थे, अकेले नहीं मांग रहे थे। जरा जी अपने आप को खाना काबा में लेके जाएं, और उस जमाने में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना था और वो रेस कर रहे थे खाना काबा को, इस्माइल और इब्राहिम दोनों मिल के रेस कर रहे थे। क्या रेस कर रहे थे? बाउंड्रीज, वॉल्स, छत, सीलिंग। जो आज हम खाना काबा देख रहे हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बना हुआ है। जी ठीक है। और उससे पहले ये जो बनाया था आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था। फिर जब तूफान नू आया था, टोर्नेडो, पानी आ गया था जमीन में, तो उस वक्त फिर जो था नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में वो पानी में गिर गया। लेकिन उसकी जो कवायद थी ना, जो नीचे बेस होती है वो उधर ही थी। बेस जी नहीं पानी बहा के ले जाता, वो बहुत मजबूत होती है। घर की जो बेस होती है ना वो बहुत मजबूत होती है, बेसमेंट बेस। इसलिए घरों में बेसमेंट बनाई जाती है, बेस मजबूत की जाती है। तो वो बेस जो थी वो, उसी के ऊपर फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला हुक्म दिया कि ये बेस है, इसके ऊपर, ये सिर्फ बेस है, दीवारें नहीं है, तुम इन पे दीवारें भी खड़ी करो और इसके ऊपर छत भी बनाओ। और जब उन्होंने बनाया था तो इस तरीके से नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बनाया था तो वो रेक्टेंगल था। जी ठीक है, रेक्टेंगल था, इस तरीके से था, इस तरह से नहीं था। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसको बनाया गया ना दोबारा से, हजरे जी अस्वद वहां पर डाला गया, दोबारा बनाया गया, दोबारा जी बाउंड्री बनाई गई नए सिरे से। तो फिर वहां पे ये वाले जो इलाका, जो एरिया ने, इसको छोड़ दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया। और ये वाला क्यों छोड़ दिया गया, रेक्टेंगल जो पीछे एरिया था वो क्यों छोड़ दिया गया? इसको हतीम कहते हैं ना, आपने देखा ना साइड में एक लोग नमाज पढ़े होते हैं, है ना, इसके अंदर भी नमाज पढ़े होते हैं लोग हतीम के जी अंदर। आप देखना कभी खाना काबा का लाइव आता है ना व्यू, आप यूट्यूब पे जाएं और लाइव देखें, खाना काबा हर वक्त जी दिखा रहे होते हैं। तो ये तो खाना काबा है, लेकिन ये जगह जो थी, जो जो खाना काबा का हिस्सा है यानी, पहले ये खाना काबा के अंदर शामिल था। फिर क्या किया गया, यहाँ पे ये इतना बनाया गया और इसको छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे जो बंदे नमाज पढ़ते हैं वो समझ ले खाना काबा के अंदर ही नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये खाना काबा ही था ना जी पहले, रेक्टेंगल था। फिर जी अब इसको जो है ये किया गया, इस शेप में किया गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस शेप में क्यों किया गया? क्यों किया गया, क्या वजह हो सकती है कि ये एरिया छोड़ दिया गया? मटेरियल कम पड़ गया था, मटेरियल नहीं था ज्यादा। जी जी। तो फिर ये एरिया जो था इसको छोड़ दिया गया, और इसके अंदर जो लोग आज नमाज पढ़ते हैं वो एज इट ऐसे ही होता है जैसे खाना कैबा के अंदर नमाज पढ़े। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि अंदर जाके नमाज पढ़े, औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं। तो कितने खुश नसीब होते हैं जिनको जगह मिल जाती है, जो अंदर जाके पढ़ लेते हैं। इसलिए वो बहुत क्लोज क्लोज होके चलते हैं। और वहां पे वो छुट्टे खड़े, पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो नहीं जाने देते अंदर। ठीक है। फिर वो थोड़ी देर के लिए उसको खोलते जी हैं, लोग अंदर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसको कहते हैं हतीम। हा तो या मीम, हतीम का एरिया। और ये खाना काबा के अंदर पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बनाया था तो यहाँ तक था। हमें अपनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए ना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसको ये इस शेप में लाया गया। और इसमें हजरे अस्वद, हजरे अस्वद जो है ये एक पत्थर जो थी उसकी जगह खाली थी वहां पे, तो वो जन्नत से लाया गया, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाया, फिर वहां पे नस्ब किया गया। एक पत्थर भी कम था तो वहां से लाया गया, फिर उसको हजरे अस्वद कहते हैं। और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहाँ पे खड़े होके उसको बिल्ड कर रहे थे ना, है ना, मुसल्ला जिसे कहते हैं ना, जी
वहां पे नमाज पढ़ी जाती है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, 2 नफल पढ़े जाते हैं। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ी जाती है कि मकाम इब्राहिम। तो वहां पे जो पत्थर लगा हुआ है, आपने देखा है पाँव का निशान है वहां पे। जी अगर आपको वहां मौका नहीं मिला तो कभी वीडियोस में देखा करें, वीडियोस में नजर आता है। तो वो स्टोन भी जन्नत से आया था। वो लेडर का काम करता था तो वो स्टोन उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते थे, लेकिन वो ऊपर नीचे जाता था, ऊपर नीचे, उनको नीचे आना होता था वो नीचे ले आता था, ऊपर जाना जाना होता था। उस जमाने में नहीं होते थे, पत्थर बहुत भारी भारी होते थे, और वो उनको कोई उठा भी नहीं सकता था, तो इस तरीके से फिर उन्होंने बनाया था। खाना काबा के अंदर ये मक्का में आप देखें तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े। और वो जो है फिर इस तरह नहीं, लोग भी हुए ह्यूज होते थे, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे जाने के लिए तो चाहिए ना। जी तो उसको भी फिर अल्लाह ताला ने महफूज करवा दिया। ठीक है। और ये जगह हतीम, इसको भी महफूज कर दिया। हम इसके अंदर हर बंदा नहीं जा सकता, इसके बार बार से तवाफ करते हैं सब। ठीक है। लेकिन कुछ खुश नसीब होते हैं जिनके लिए ये खोला जाता है, वो अंदर जाके नमाज पढ़ लेते हैं। थोड़ा टाइम होता है, जैसे बाकी चीजें खोली जाती है ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर लोग जा सकते हैं, टाइमिंग होते हैं उसके। जैसे जन्नत वो होता है ना आपका, जन्नतुल बकी के लिए भी टाइम होता है अंदर जाने का लोगों का। और वो जो रियाजुल जन्ना होता है उसमें भी टाइम होता है, किस टाइम पे आपने अंदर आके नमाज पढ़नी है, ये मर्दों का टाइम है, ये औरतों का टाइम। तो टाइमिंग जी होते हैं हतीम के भी, के अंदर जाके नमाज पढ़। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कवायद क्या होते हैं, बाउंड्रीज, कवायद तो पहले से बने हुए थे, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए थे ये। लेकिन इसके ऊपर फिर किसने बनाया, नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया, वो तूफान नूह में बह गया। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फिर दोबारा इसको बनाया गया। तो फिर उसमें हजर अस्वद आया, वो नस्ब किया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बनाया था उसमें हजर अस्वद नहीं था। हजर अस्वद बाद में नहीं, हजर अस्वद था, सॉरी, उस वक्त भी था। ये दोनों पत्थर जन्नत से ही आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही हजर अस्वद लगाया था, लेकिन बाद में जब दोबारा बाउंड्री बनी तो वो ज़ाहिर उसको निकाला गया, फिर दोबारा लगाया गया। जी तो उसमें झगड़ा भी हो गया था। आपको पता है झगड़ा हुआ था। हर कबीला जो हर उनका ट्राइब था वो चाहता था कि हम लगाएं, हम लगाएं, हम लगाएं। झगड़ा हो रहा था, लड़ रहे थे वो लोग। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या फैसला किया, ने ये फैसला किया कि जो सुबह सवेरे आएगा ना वो लगाएगा, वो शख्स लगाएगा जो सुबह सवेरे खाना काबा में दाखिल होगा। तो जब उन्होंने वेट किया और सुबह सवेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो फिर सबने कहा ठीक है, मोहम्मद आ गए हैं, वही लगाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले नहीं लगाया। कैसे लगाया था पता है आपको, उस स्टोन को कैसे एक लगाया? कपड़ा लिया था आपने? क्या लिया था? कपड़ा। हाँ, चादर ली थी, चादर के ऊपर उसको रखा, और हजर अस्वद को बीच में रखा। और फिर जो है सब ट्राइब्स को बोला इसको पकड़ लो। हर ट्राइब का एक एक आदमी आया, उसने पकड़ लिया। और फिर उन्होंने उठा वहां करीब ले गए, और वहां उठा उठा के फिर लगा दिया। काफी हैवी है ना वो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको लाए थे। जन्नत का पत्थर है वो। इसलिए तो कहते हैं ना, जो उसको टच करता है फिर वो क्या होता है, वो जन्नत में जा सकता है। इसलिए लोग इतनी कोशिश करते हैं कि हम उसको टच कर लें। ठीक है। और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको टच किया था। ठीक है। तो हम हर बंदा भी चाहता है कि हम उसको टच करें, लेकिन जरूरी नहीं है आप ऐसे लोगों को धक्के दे के और ख्वार होके जाके वहां पे नहीं टच कर सकते। अगर आपको आपको आराम से जगह मिल जाती है, अल्लाह ताला आपको वहां पहुंचा देते हैं, तो आप टच कर सकते हैं। लोगों को नीचे दे के गिरा के नहीं। तो हर चीज का एक होता है ना। तो कवायद क्या है वो बता दिया मैंने, हाल बता दिया। और वह इस्माइल भी जो है, ये भी फाइल बनेंगे, यरफा के रब्बना। अब इसमें यकूल लानी, वो दोनों कह रहे थे रब्बना। ठीक है। अब यहाँ पे रब क्या बन रहा है? हम रब
رب منادى منصوب بالفتحة. رب مناदा है, मुनादा है तो हरफ निदा क्या है? रब्बा है ना, أم. तो रब्बा का क्या मतलब है कि या गिराया गया है ना यहाँ से, जी। या गिराया तभी तो जबर आई है, वरना तो रब्बू ना होता है ना, जी। वरना तो रब्बू ना होता है, मुजाफ मुजाफ इलैह। लेकिन जैसे अब्दुल्ला होता है तो हम उसके ऊपर या लगाते हैं तो अब्दुल्ला कर देते हैं ना, जी। इसी तरह रब्बू ना होता है तो हम या लगाते हैं तो फिर क्या करते हैं, रब्बा ना कर देते हैं। ठीक है, फिर या को भी गिरा देते हैं, रब्बा ना रह जाता है। ये रब्बा ना में बता रहा है कि इसमें ए के मानी ओ के मानी करने हैं। ठीक है, जबर बता रही है हमें। अगर रब्बू ना होता तो क्या मतलब होता, रब्बू ना का क्या मतलब होता? ए का मीनिंग आता, ओ का मीनिंग आता। أم. नहीं। इसमें ओ का मीनिंग आता है? जी। नहीं आता। अब्दुल्ला में कहाँ से ओ का मीनिंग आता है, मुझे बताएं। अब्दुल्ला में और कहाँ से आता है ओ का मीनिंग? जब अब्दुल्ला कहेंगे तभी ओ का मीनिंग आएगा ना, जी। तो इसमें भी नहीं आता। ठीक है, जब रब्बा ना कहेंगे तब ओ का मीनिंग आएगा, ओ अवर लॉर्ड, तभी जबर आती है इसके ऊपर। जबर क्यों आती है? जबर इसलिए आती है कि ओ का मीनिंग कर सके, हमें पता चले कि यहाँ ओ या ए, रब, ए हमारे रब। तो रब क्या है? मुनादा है और मंसूब है, बिलफतह है। क्यों है मंसूब? क्योंकि मुजाफ बन रहा है, मुजाफ। तो मुनादा जो होता है मुजाफ होता है तो मंसूब होता है, और उसमें ए का मीनिंग किया जाता है। ना क्या, फी माली जर मुजाफ इलैह रब्बना हो गया। उसके बाद क्या, बल जुमला तो मकूलुल कौल। मकूलुल कौल किसका बन रहा है? यकुलानी का। यकुलानी आया ना पीछे। जी। जी। यकुलानी में फाइल क्या है? यकु यकूलानी हुमा। हुमा फाइल है। दोनों कह रहे थे ना, तो क्या कह जी। रहे थे, वो मकूला बन जाएगा रब्बना। सिर्फ रब्बना बनेगा या आगे वाला भी बनेगा? सब पूरा ही मकूला बनेगा, क्योंकि पूरी दुआ उनका मकूला है, जो जी। हम भी पढ़ते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मुझे बाय। ये जी। पूरा मकूलुल कौल बन रहा है। और ये मकूलुल कौल किसका बन रहा है? यकूलानी का बन रहा है। जी। मकूलुल कौल जो होता है ना वो हमेशा काला का होता है। अब यकूलानी भी तो काला ही है ना, कालू हो, कुल हो, उसके आगे जो भी आएगा वो आपका मकूलुल कौल ही हो। तो ये मफूल बन गया यकूलानी का, यहां तक पूरा। अब इसको पढ़े तो रब्बाना क्या हो गया, मुनादा मुजाफ हो गया, और ये मजरूर हो गया, मुदाफ इलैह हो गया, बल जुमला तो मकूलुल कौल भी हो गया। अब फेले अमर लिद्दुआई। अब ये फेले अमर कौन सा फेले अमर बता रहे हैं? किस फेले अमर की बात कर रहे हैं? उसके पीछे क्या लिखा हुआ है फेले अमर के पीछे? अम। तकब्बल लिखा हुआ है ना, क्या हो गया है, एक दिन छुट्टी करो तो बस। तकब्बल, तकब्बल के बारे में बता रहे हैं, फेले अमर है लिद्दुआई, फेले अमर होता ही दुआ के लिए है। जी। अल्लाह ताला से दुआ करनी हो ना तो फेले अमर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तकब्बल कैसे बन गया, ये फेले अमर है ये, है ना, तकब्बल। जी। जी। रब्बना तकब्बल, मीनिंग में तो ये बता रहे हैं कि फेले अमर ही है। तो इसका माजी मुजारे और अमर कैसे बनेगा, बताएं जरा मुझे। तकब्बल कैसे बन गया? सो कौन सा बाब है? तक तकब्बला यतकब्बलु। तकब्बुल। जी। तकब्बुल नहीं होगा, तकब्बल ही होगा। तकब्बुल बनाएंगे तो वो तो फिर तफाउल बाप का नाम बन जाएगा ना, तकब्बुल, वो तो बाप का नाम बन जाएगा, तफाउल। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये तकब्बलू बना, तो तकब्बलू बना ता ता कब्बलू,
ठीक है, ये आपका मुखातिब का सीगा बन गया ना, ततकब्बलू, यतकब्बलू, पहले तकब्बला था, फिर यतकब्बलू बना, यतकब्बलू, फिर ततकब्बलू बन गया। अब इसके आपने बनाना है अमर, इस ता को गिरा देंगे और इसको सुकून कर देंगे। अब ये तकब्बल बन गया। हमजा लगाने की जरूरी है? नहीं जरूरत। हमजा क्यों नहीं लगाएंगे शुरू में? Because readable है already. ऑलरेडी रीड हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे सुकून आए ना तो फिर हमजा लगाते हैं, फिर पढ़ा नहीं जाता है, रीडेबल नहीं होता। हमजा लगाते हैं, उसके ऊपर हरकत लगाते हैं, लेकिन अब ये रीडेबल है, तकब्बल। तो ये जो तकब्बल ला था, तो तकब्बल लू था, और फिर ये तकब्बल बन गया, एक ता गिर गई तो। मिन्ना क्या है? अच्छा, ये हो गया दुआए वल फाइलु जमीर मुस्ततिर। कौन सा फाइल है इसके अंदर? वल जुमला तो जवाबु निदा, बताएं। um अंता जमीर नहीं होती पहले सीधे में, जो हम फेले अमर जी बनाते हैं, दरबा यदरिबु, इदरब इदरिब बनाते हैं ना, जी तो उसमें अंता जमीर नहीं होती? होती जी है ना, तो ये भी पहला सीगा है ना। अमर जब बनाते हैं तो उसके अंदर अंता जमीर होती है हमेशा, है ना। तो जी रब्बना तकब्बल अंता फाइल है इसमें, जमीर मुस्ततिर इसके अंदर फाइल है, वल जुमला तो जवाब निदा। ठीक है, अब ये जुमला तो जवाब निदा कैसे बन रहा है? क्योंकि ऊपर निदा आया था ना, पुकार आई थी ना, या रब्बना, रब्बना, तो ये उसका जवाब निदा बन गया, ठीक है। जैसे शर्त होता है तो जवाब शर्त होता है, फिर इसकी डिटेल है थोड़ी सी, मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, आज नहीं बताऊंगी। अच्छा, मिन्ना क्या बनेगा? जार मजरूर मुतल्लिके फेल तकब्बुल, तकब्बुल फेल है ना, फेल हमारा, तो उसका मुतालिक बन गया। आगे पढ़े इन्ना का, हाँ, वल जुमला तो यकूलानी फी महली नस्बिन हाल मिन इब्राहिम व इस्माइला। तो ये हाल बताया जा रहा है पूरा इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का। इस हाल में कि वो दुआ कर रहे थे, और दुआ क्या थी? वो रब्बना आतिना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समी। अब इसके बारे में पढ़े इन्ना का। إنك إن حرف ناسخ التوكيد يفيد التوكيد والضمير في محل نصب اسمها जमीर क्या है? उसका इसम बन रही है जी ना। इन्ना का इसम मंसूब होता है ना, तो जी ये जमीर भी क्या है? यहाँ पे मंसूब है, क्योंकि पीछे इन्ना आ रहा है। इन्ना का इसम मंसूब होता है, और इन्ना की खबर क्या होती है? ये पूरी खबर बन रही है इन्ना की। तो इन्ना की खबर क्या होती है? إنك خبر منصوب ये इसम भी मंसूब, खबर भी मंसूब। नहीं مرفوع हम्म, तो अंता क्या पढ़ें जरा। أنت ضمير في محل نصب توكيد للكافي हम्म, ये जमीर आ रही है, जमीर फसल है ये, इसको जमीर फसल कहते हैं। जब खबर जो होती है ना, खबर, वो आपने मार्फा लानी हो, तो बीच में एक जमीर लाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब भी तू है, और इसका मतलब भी तू है, ये का है, और ये मंसूब जमीर है, ये मरफू जमीर है। तो ये इस तरीके से बीच में एक जमीर लाए थे, इसको जमीर फसल कहते हैं, और ये किसके लिए होती है? ताकीद के लिए, एम्फेसिस के लिए होती है। बेशक तू, तू ही, बेशक यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? ओनली, ठीक है। जी अ, बेशक, इंडीड यू, ओनली यू, कौन है? असमिया उल अलीम, तू ही सुनने वाला है और तू ही जानने वाला है। देखिए, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, खाना काबा बना रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं, ऑर्डर पूरा कर रहे हैं,
अल्लाह ने कहा यहाँ खाना काबा बनाओ, ताकि लोग यहाँ पे क्या करें, आगे हम पढ़ेंगे किस लिए बनाया गया, सब बताया अल्लाह ने, खाना काबा को क्यों बनाया गया। तो इतना बड़ा काम करें फिर भी कह रहे हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारी दुआ को, दोनों माँ बेटा दुआ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम नेकी का काम करें तो हम तो कहते हैं हाय हमने नेकी का काम कर दिया, अल्लाह पे एहसान कर दिया, है ना, बहुत बड़ी नमाज पढ़ ली है, रोजा रख लिया, कुछ जक़ात निकाल दी, कुछ खैरात सदका कर दिया, तो हम क्या कहते हैं बड़ा नेकी का काम कर दिया, अल्लाह पे एहसान हो गया। ठीक है, कभी हमने कहा है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आगे भी दुआ है, यही नहीं है। तो नेकी का काम करते हुए भी सहाबा भी ऐसे ही थे, वो नेकी का काम करते थे और फिर डरते थे, डरते थे और यही वाली दुआ करते थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, कि पता नहीं कबूल हुई है नहीं हुई, अल्लाह ने उसको हमारे नेकी के काम को कबूल किया नहीं किया, है ना। तो जब जी। भी हम कोई अच्छा काम करें तो हमें अल्लाह के शुक्र भी करना चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। शुक्र इसलिए करना चाहिए, ग्रेटफुल इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। हर बंदा नेकी का काम नहीं कर सकता, हर बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, हर बंदा अपने पैसों में से पैसे नहीं किसी को दे सकता, ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़े दिल वाले ऐसे करते हैं। तो वो जो है फिर उसके बाद फिर आपको दुआ भी, शुक्र के ग्रेटफुल भी होना चाहिए, अल्लाह ने तौफीक दी, दुआ भी मांगनी चाहिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना। ये दुआ याद है ना आपको, है? जी। हाँ, आगे भी है, इन्ना का, हम तो इतनी ही मांगते हैं ना, इन्ना का अंतत वतुब अलैना इन्ना का अंतत तव्वाबुर रहीम, ये कब मांगते हैं हम दुआ, जब क्लास को खत्म करते हैं रब्बना तकब्बल, तभी मांगनी चाहिए। हम तो सिर्फ सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान सुबहान अल्लाह व बिहम क्या कहते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा, लेकिन ये दुआ पहले मांग के फिर वो वाली मांग। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह का ग्रेटफुल जो उसने पढ़ने का मौका दिया। ठीक है ना, अब कितने दिन थे मैं नहीं पढ़ा सकी ना, बीमार थी, फिर आप लोगों के एग्जाम चल रहे थे, ये सारी चीजें चल रही। तो अगर अल्लाह ताला आपको देते हैं टाइम तो फिर आप शुक्र अदा करना चाहिए। बेहतरीन दुआ है ये, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? इन्हीं के, ये ये इब्राहिम पैदा, अलैहिस्सलाम। हाँ ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के नाम थे, इस्माइल और इसहाक। ठीक है, अब इसहाक जी। जो है वो अलग बेटे थे, इस्माइल अलग। अब दोनों की जनरेशन आगे जा रही है ना, जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, इसहाक की भी जा रही है, याकूब अलैहिस्सलाम आए, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर वो, है ना। याकूब अलैहिस्सलाम के तो 12 बेटे थे, फिर आगे उनकी जनरेशन सब, इसी तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम की। लेकिन आगे जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 2000 साल के बाद, 2000 ईयर के बाद, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में इब्राहिम की औलाद के बेटे इस्माइल, 2000 साल गुजर गए और उसके बाद जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे कि मैं क्या हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। इन्होंने दुआ की थी, आगे वो दुआ भी आएगी, ये देखें इसमें ये दुआ है उनकी, ये रब्बना वब असफीहिम रसूलन, ठीक है, रसूलन मिनहुम जी। यतलू अलैहिम आयातिका, ये दुआ इस दुआ के नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2000 साल पहले दुआ मांगी थी और 2000 साल के बाद जाके, 2000 ईयर के बाद जाके ये इस दुआ कबूल हुई। तो कभी कभी हमारी दुआएं जब अल्लाह को मंजूर होते तभी कबूल होती है ना, बाज दफा हमारी जनरेशन में जाके कबूल होती है। ठीक है, जी। तो ये 2000s के बाद ये जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इनकी दुआ की वजह से आए। दुआ कब मांगेगी, जब खाना काबा बनाया गया, उस जमाने में मांगेगी। ठीक है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा का खाना काबा को दोबारा आके किया
2000 साल के बाद अपनी लाइफ में फिर इसको दोबारा बनाया। तो पहले रेक्टेंगल था, फिर उन्होंने जी। स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि उसमें मटेरियल कम पड़ गया था, तो वो जगह छोड़ दी गई। इतना मटेरियल कम था कि खाना काबा के अंदर भी एक पत्थर की जगह जो बनाया था उसके अंदर भी जगह नहीं थी, एक पत्थर की जगह भी वहां कम थी। तो फिर वहां से जन्नत से पत्थर आया और वो लगाया गया। ठीक है ना? तो अभी जी। यहाँ पर क्या है, इन्ना का। अब ये इन्ना का इसम हो गया, और ये जमीर फसल कहते हैं इसको, एम्फिसिस के लिए होती है। और ये जो है फिर खबर, खबर वन और खबर टू। ये मुरक्कब तौसीफी तो नहीं बन सकता ना? ये बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, लेकिन क्यों नहीं बन सकता? खबर अव्वल बन रहा है और खबर सानी बन रहा है। ठीक है ना? खबर अव्वल खबर जी। सानी बन रहा है। इन्ना, इन्ना का इसम, और इन्ना की खबर वन और खबर टू। खबरू इन्ना अव्वल और खबरू इन्ना सानी। क्यों नहीं बन सकता? रेहान, अर रहमान अर रहीम क्यों नहीं बन सकते मुरक्कब तौसीफी? अर रहमान और अर रहीम को हम मुरक्कब तौसीफी क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज बोथ आर एडजेक्टिव्स। आप मुझे बताएं, जदीद उन कदीम उन, ये दोनों मुरक्कब तौसीफी बन सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बन सकते? मुझे बताएं ना, क्यों नहीं बन सकते? क्या मसला बिकॉज है? एक इसम, एक दोनों इसम। इसमें होना एडजेक्टिव हैं। चाहिए। रेहान तंग नहीं किया करो, दोनों एडजेक्टिव हैं। इसके पीछे हम कोई नाउन लगाएंगे, किताबुन लगाएंगे, और उसकी फिर एडजेक्टिव वन एडजेक्टिव टू बनाएंगे, तब जाके बनेगा। सही है? जी। मेरा पेट भी जी। कहाँ गया है? ना ये है। तो जब एडजेक्टिव्स आते हैं तो वो मुरक्कब तौसीफी नहीं बना सकते। अगर आप कहें ना किताबुन जदीदुन, तो ये, ओ माय गॉड, किताबुन जदीदुन कहेंगे ना, तो ये आपका बन जाएगा मुरक्कब तौसीफी। ठीक है? क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है, ओनली दिस वन इज एडजेक्टिव। लेकिन अगर आप जदीदुन कदीमुन कह देते हैं और फिर इन दोनों को बनाते हैं, तो ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव है। इसमें दोनों एडजेक्टिव नहीं है, इसमें एक आपका नाउन है और एक एडजेक्टिव है। किताब इज अ नाउन और जी। जदीद इज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर आपका अत्तवाबुर रहीम क्या मुरक्कब तौसीफी बन सकता है? हम्म? नहीं, नहीं बन इस सकता। दोनों दोनों एडजेक्टिव्स हैं। आप लोग भूल क्यों जाते हैं? तो इस तरह ये अस्समीउल अलीम भी नहीं बन सकते। ठीक है? जी। अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाह, ये है ना कि ये इसके पीछे क्या आता है? आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन आता है ना, बिस्मिल्लाह। मीम आता है, बिस्मी इसमी आता है। अल्लाह ही के अर रहमान रहीम। अब ये क्या बनेगा? ये मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे। ये तीनों भी मिलके मुरक्कब तौसीफी बन जाएंगे, क्योंकि इसमें एक नाउन आ गया, बाकी एडजेक्टिव आ गया। लेकिन अकेले जो है रहमान और रहीम और अल गफूर और जितने भी हैं वो नहीं बन सकते। इस बात को याद रखेंगे। जी। चलें, तो अभी है थोड़ा नमाज में टाइम। ठीक है? कितने बजे होती है आपकी मगरिब? हम्म, अब नेक्स्ट कब पढ़ना है हाँ। आपने? मुझे बता दें पहले ही अपना स्केड्यूल। हाँ। हाँ,
ہم کل پڑھ سکتے ہیں بٹ 3 o'clock پہ. ہاں 3 o'clock مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتا، آج مجھے پتا نہیں تھا، شور نہیں تھا نا، جی. حالانکہ 4 بجے میں ادھر قریب میں ہی تھی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا، میں نے چیک بھی نہیں کیا آپ کا میسج بھی. صحیح ہے. تو آج ہم نے یہ والی آیت کی، اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل پڑھی ہے. اگلی آیت میں جو ہے وہ بھی دعا ہی چل رہی ہے دوبارہ. ربنا، ربنا کا کیا ٹرانسلیشن ہوتا ہے؟ کیا Oh our Lord. او اوور لارڈ. او کا ٹرانسلیشن اس زبر سے آ رہا ہے. اگر یہ ربنا ہوگا تو اس کا وہ نہیں ٹرانسلیشن کریں گے. کیا کریں گے؟ ربنا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ um او نہیں لگائیں گے، بس Our Lord. Our our Lord. Lord. اوور لارڈ کر دیں گے نا. مرکب اضافی ہے نا ربنا. اوور لارڈ، جی ابونا میرے ابو، ہے نا. جی امونا میری امی، ہماری امی، ہے نا. تو وہ آپ کا مرکب اضافی بنے گا ربونا. تو اگر آپ کا زبر آ جائے تو اس کا آپ کا اے کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. وجعلنا. اب اس میں مجھے بتائیں، یہ اجعلنا کون سا فعل ہے؟ یہ اجعلنا، اجعل، وہ لگانے سے وجعل ہو گیا نا. جی اجعل، جعل، یجعلو، تجعلو، کیا بنتا ہے؟ تجعلو سے آگے بنائے امر. ایجاد. اجعل بنتا ہے نا. جی اجعل نا. تو اجعل میں فائل کیا ہوگا؟ اجعل میں فائل کیا ہوگا؟ جو آپ امر تیار کرتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں، اس میں فائل کیا ہوتا ہے؟ انتا ہوتا ہے نا. ابھی اوپر بھی تو بتایا تھا میں نے، جی ہے نا. جی تو بنا دے، تو بنا دے کس کو؟ ہم کو، ہم کو، اس. یہاں اس کا ٹرانسلیشن وی نہیں کریں گے، اس کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی فائل ہے انتا. اجعل، اب اللہ تعالیٰ جو ہے بنائیں گے نا. ٹھیک ہے نا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو انتا فائل ہوگا نا. تو بنا، ہم کو، ہم کو کیا بن جائے گا؟ مفعول. کیا بنا دے؟ اجعل کے 2 مفعول ہوتے ہیں، مسلمینی. تو نام بھی مفعول ہو گیا اور مسلمین بھی مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہے آپ کا یہاں پہ؟ ہے نا کوشچن؟ مجھے بتائیں کیا کوشچن ہے آپ کا. میں نے اس کو مفعول کیوں بنایا ہے؟ یہی کوشچن ہے نا، ہے نا، جب اس کے پیچھے سکون آ رہا ہے. جی یہ کوشچن ہے نا کہ میں نے اس کو اس کا میننگ کیوں دیا ہے. ٹھیک ہے. اور that's because وہ عمر بن گئے. That's why فائل، سکون. فائل تو انتا بن رہا ہے نا، تو جی اس کو بھی فائل بنانا ہے. پھر دو فائل تو نہیں ہو سکتے نا. فائل تو فعل امر کے اندر انتا ہی ہوتا ہے نا، جی اور نہ تو نہیں ہو سکتا فعل امر کے فائل. ٹھیک ہے نا. اچھا، جی تو بنا ہم کو، ہمیں، اس. کیا بنا؟ مسلمینی، مسلمانی، مسلمونہ کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ مسلمانی کیوں نہیں آیا؟ مسلمینی کیوں آیا ہے؟ منصوب ہے نا. فعل کے بعد منصوب جی اسم آئے تو کیا بنتا ہے؟ مسلم، مفعول. مفعول بنتا ہے. وہ بھی آپ اوپر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو چیک کر رہی ہوں تھوڑا. تو یہ سیکنڈ مفعول بن گیا، یہ فرسٹ مفعول. اجعل کو جعل کے 2 مفعول ہوتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے نا اجعلنا، تو بنا دے ہم کو، تو کیا میننگ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ او لارڈ میڈ اس، تو یہ تو میننگ پورا ہی نہیں ہوا. کیا بنا دے ہم کو؟ 2 مسلمان بنا دے. فرما بردار، سبمیشن کرنے والے، سبمٹ کرنے والے. ٹھیک ہے. یہ نام ہمارا جو مسلمان ہے نا، یہ کس نے رکھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا.
اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، تو ہم پتہ نہیں کون کون سے نام رکھے ہوئے ہیں مسلمانوں نے اپنے، ہم دیوبندی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام ہی نہیں آتے. ہمارا نام صرف مسلمان ہے. حنفی، ہم حنفی ہیں تو ہم مالکی ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوئے لوگوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے تمہارا نسل نام. ٹھیک ہے. لکا، جی اپنا، تیرے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ حرف جر لی ہے اور یہ کا ہے آگے مجرور ہے، مرکب جاری بن رہا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے. من کی وجہ سے ذریتی ہو گیا، نہ ہماری اولاد میں سے. یہاں پہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، ہماری اولاد، ہماری جنریشنز میں. ہماری جنریشن کیا ہے؟ امتن مسلمتن بنا. ٹھیک ہے نا، ہماری جنریشن میں سے ایک امت مسلم بنا. ٹھیک ہے. لکا، اپنی، تیرے لیے. وَأَرِنَا، اور دکھا ہم کو. ارینا، ہم کو، یا مفعول بن رہی ہے. اری کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا وہ ہے، امر ہے. اری، اری کیا ہے؟ یہ بھی فعل امر ہے، اور نہ اس کا مفعول ہے. اور دکھا ہم کو، یہاں پہ یا گری ہوئی ہے، یہ اصل میں یا بھی تھی، یہاں پہ وہ گر گئی. تو ارینا مناسکنا، اور سکھا ہم کو، دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے. طریقے کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے نماز کیسے اب پڑھنی ہے، ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، ہم نے حج کیسے کرنا ہے، ہم نے طواف کیسے کرنا ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تب اللہ، تابا اللہ آ رہا ہے نا. جی تابا اللہ آئے تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو اللہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تابا اللہ، تب کیا ہے؟ فعل امر ہے. تابا یتوبو، تب، یتوبو سے تتوبو ہوگا نا، جی تتوبو. اور اس کے بعد اس کا امر بنائیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا یہاں پہ، اور یہ والا گر جائے گا تو یہ پیچھے بچ جائے گا. اب دو ساکن آ گئے تو اس کو ڈراپ کریں گے، یہ تب بن جائے گا، فعل امر بن گیا. تب، تب، تابا یا تب کے بعد اللہ آ جائے تو اللہ کا بندے کی توبہ قبول کرنا ہوتا ہے. اور الہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر تب تابا الہ ہو تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندے کا توبہ کرنا. کیا کہتے جی ہیں اس کو انگلش میں؟ forgive someone. ہاں. تابا الہ کا اور مطلب ہوتا ہے، اور تابا اللہ کا مطلب اور ہوتا ہے. تابا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا توبہ قبول کرنا، اور یہ ہوتا ہے بندے کا توبہ کرنا. الہ اور اللہ سے یہ فرق پڑتا ہے، فعل ایک ہی ہے. اور توبہ کر، توبہ قبول کر ہماری، یعنی متوجہ ہو ہماری طرف. انا کا، بے شک تو ہی. انا کا اسم آ گیا، پھر ضمیر فصل آ گئی، پھر آپ کا انا کا اسم اور انا کی خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2. اس کو مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے کیونکہ دونوں ایڈجیکٹیو ہے. تو بات سمجھ ہوگی آپ کو آ گئی سمجھ؟ تو کل ہم اس کو کریں گے، جی اور پھر آپ کا دیکھیں یہاں پر یہی بتایا گیا. ربنا واجعلنا مسلمینی مفعول بھی ثانٍ. تو پہلا مفعول کیا تھا؟ یہ تھا. دوسرا مفعول یہ تھا، اور یہ متعلق تھا مسلمینی کا. مسلمینی، ربنا واجعلنا مسلمینی، مسلمینی کا متعلق بن رہا ہے. ومن ذریتنا، اور ہمارے، یہ پورا جار مجرور بن جائے گا. امتن مسلمتن، لکا، اپنی. وَأَرِنَا، فعل امر، مفعول بن رہا ہے. مناسکنا، دکھا ہم کو کیا؟ یہ مناسکنا، مفعول بھی ثانی بن رہا ہے اس کا. یہاں پہ اول بن رہا ہے، یہ دوسرا سیکنڈ بن رہا ہے.
वतुब, तुब जो है ये फिल अमर है, दुआ के लिए होता है फिल अमर, ठीक है। और उसके बाद आमीन जो है ना, वो भी अमर का मानी देता है, प्लीज एक्सेप्ट, आमीन जो हम पढ़ते हैं तो वो भी अमर ही होता है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अंतर ज़मीर फाइल है, अलैना जार मजरूर मुतालिक तुब का हो गया, और फिर इन्ना का इसम, इन्ना की खबर नंबर 1, खबर नंबर 2, ये पूरा जुमला इसमिया बन गया, दुआ कंप्लीट हो गया। फिर अगले आगे हम नंबर 3 दुआ पढ़ेंगे। आप लोग होमवर्क नहीं करते हो कभी, मैंने आपको ये बुक भी दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास रिवीजन का, तो इसलिए थोड़ा आप देर से चीजें भूल जाते हो ना, तो इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना होता है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, वो लोग आपसे बहुत आगे निकल गए, आपसे बाद में शुरू किया था और आपसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन आप लोग जो है चीजें भूल जाते हो बार बार। लेकिन ये है कि छुट्टियां कम से कम करो, कोशिश करो कि थोड़ा बहुत जुड़े रहो। रेहान, मेरी बात सही है जी ये गलत है? जी जहाँ कुछ भी बोलते हैं ना आगे से, मैं जो कह रही हूँ ठीक है ना? जी प्रैक्टिस क्या होती है, परफेक्ट करती है ना आपको। तो जी प्रैक्टिस आप अकेले में तो करते नहीं, तो मेरे साथ तो करनी पड़ेगी ना फिर। मेक समय परफेक्ट। चलो ओके, सुहाना दुआ कर ले। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد نشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا أنت أنت نستغفرك نستغفرك ونتوب ونتوب إليك. إليك. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته.